क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, सुपर हिट क्वेश्चन. psi1 and psi2 are the wave functions of two orthogonal states of a state of a system belonging to energy eigenvalue capital E and minus capital E respectively. In a measurement of energy of another state psi of the system, the expectation value of energy is found to be E by 2. Psi in terms of psi1 and psi2 is, four options are given. Let psi is equal to C1 psi1 plus C2 psi2, where psi1 is normalized eigen function of Hamiltonian with energy value E. Psi2 is normalized eigen function of the Hamiltonian with energy eigenvalue minus E. This is given to me in question. Obviously, they are orthogonal to each other. आप जानते हैं wave function are said to, wave function psi1 and psi2 are said to be orthogonal when integral psi1 psi2 dx, when integral psi1 star psi2 dx within limit minus infinity to infinity is equal to 0. और अगर इंटीग्रल साई स्टार साई डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 है तो वेव फंक्शन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड. और अगर इंटीग्रल साई स्टार साई डी एक्स विद इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टू वेव फंक्शन आर सेड टू, आप देखो ये मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, इंटीग्रल साई एल साई एम डी एक्स minus infinity to infinity. In general, this is equal to delta mn. This is canonical delta function. This is 1 when m equal to n, 0 when m not equal to n. तो ऑर्थोगोनल में m, इसको मैं n बोल देता हूँ. अगर m नॉट इक्वल टू n है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये ऑर्थोगोनल हो जाएंगे. यानी साई n एंड साई m दे विल बी ऑर्थोगोनल when this condition is satisfied. राइट साइड में 0. और अगर m इक्वल टू n है फिर तो ये इंटीग्रल साई n स्टार साई n dx विद इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टू 1 वो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज हो जाएगा. और ये ऑर्थो नॉर्मेलिटी की कंडीशन, ऑर्थो नॉर्मेलिटी की कंडीशन ये है, इंटीग्रल साई n स्टार साई m dx माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टू डेल्टा mn. दिस इज ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन. ये ऑर्थो नॉर्मेलिटी है. और अगर m नॉट इक्वल टू n तो ये 0, ये ऑर्थोगोनल हो गया. और अगर m इक्वल टू n तो ये 1 हो जाएगा, यानी नॉर्मल. सो 3 कंडीशन बता दी हमने. अब यहाँ पे है ऑब्वियसली दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. आल्सो इफ साई इज ए नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, हम जानते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की कंडीशन, साई1 के कोफिशिएंट का साई1 के कोफिशिएंट के मोड का स्क्वायर प्लस साई2 के कोफिशिएंट के मोड का स्क्वायर should be equal to 1. This is condition for wave function to be normalized. Let the expectation value of the energy of system in the state represented by psi d epsilon. Then according to the rules of quantum mechanics, आज भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि अगर psi of x equal to c1 psi1 bracket x plus c2 psi2 bracket x, where psi suffix and bracket x are eigen functions of the Hamiltonian and e suffix n are the corresponding eigenvalues. Let me repeat. अगर psi of x equal to c1 psi1 plus c2 psi2, where psi suffix n bracket x are eigen functions of the Hamiltonian and e suffix n are the corresponding eigenvalues. So in that case, I told you student in one video lecture, expectation value of capital E उस केस में क्या होता था? Expectation value of capital E किसके बराबर था? बताइए, expectation value capital E किसके बराबर था जब मैंने कहा था psi is equal to c1 psi1 plus c2 psi2? उस केस में expectation value बताइए, expectation value of capital E किसके बराबर था? psi n x, psi suffix n bracket x eigen function of Hamiltonian था, e suffix n corresponding eigen values थे. यानी e1 eigen value थी psi1 की, e2 eigen value थी psi2 की. मैं फिर बता दूं, expectation value of capital E रिमाइंड करवा देता हूं, mod c1 square into capital E1 plus mod c2 square into
कैपिटल E2। तो यहाँ पे भी वही है, मोड C1 स्क्वायर इंटू मोड C1 स्क्वायर इंटू साई1 की आइगन वैल्यू कैपिटल E। ये था ना फॉर्मूला, ये दिया हुआ है, मोड C1 स्क्वायर इंटू साई1 की आइगन वैल्यू प्लस मोड C2 स्क्वायर इंटू साई2 की आइगन वैल्यू, वो मुझे उसने माइनस ई दी हुई है, वो मुझे उसने माइनस ई दी हुई है, तो ये आ जाएगा। सो कैपिटल ई कॉमन, और आगे जाके उसने ये कहा कि इन मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ अनदर स्टेट साई ऑफ सिस्टम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इज फाउंड टू बी E/2। ये हमें E/2 दे दिया था उसने, दिस इज गिवन टू मी E डिवाइडेड बाय 2। तो E appearing on left, appearing on right cancel, so I will get equation mod C1 square minus mod C2 square equal to half। और थोड़ी देर पहले हमने एक ये कंडीशन बताई थी नॉर्मलाइज वेव फंक्शन की, mod C1 square plus mod C2 square equal to 1। तो ये रूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स आपने लगाई, ये दो इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। कैसे लगाते हैं, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन मैंने बता दी, mod C1 square plus mod C2 square equal to 1, और साथ में मैंने आपको ये बताया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी और सिस्टम का फॉर्मूला। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी कैसे बताया था, अगर साई ऑफ एक्स इक्वल टू C1 साई1 प्लस C2 साई2, साई ऑफ एन एक्स इज आइगन फंक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन, E1 is eigenvalue of psi1, E2 is eigenvalue of psi2, then expectation value of E, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E का फॉर्मूला था मोड C1 स्क्वायर इनटू आइगन वैल्यू ऑफ psi1 प्लस मोड C2 स्क्वायर इनटू आइगन वैल्यू ऑफ psi2। तो जैसे कि यहाँ मोड C1 स्क्वायर इनटू आइगन वैल्यू ऑफ psi1 कितना है E, प्लस मोड C2 स्क्वायर इनटू आइगन वैल्यू ऑफ psi2 कितना है माइनस E। This is how we find expectation value of energy of given system। तो आगे बस दो इक्वेशंस, टू अननोन टू इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो आप इनको ऐड करेंगे, ये कैंसल, तो 2 mod C1 स्क्वायर 3/2 ये आ गया, और इसको यहाँ पे इस्तेमाल करिए तो mod C2 स्क्वायर, hence we may choose C1 की वैल्यू √3/2, C2 की वैल्यू 1/2। ऑफ कोर्स इन जनरल वैसे C1 की वैल्यू जनरल में √3/2 इंटू E2 पर आइटा अल्फा, और C2 की वैल्यू 1/2 E2 पर आइटा बीटा होता है, लेकिन हमारा ये आंसर जो है वो सही हो जाएगा। इन C1 C2 की वैल्यू को आप उस साइट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, साई की वैल्यू थी C1 साई1 प्लस C2 साई2, C1 के प्लेस पे √3/2 आ जाएगा, साई1 प्लस ये वाला मैं यूज कर रहा हूँ, और C2 की जगह क्या आ जाएगा 1/2 साई2। So therefore we shall say option is correct option। इस क्वेश्चन को पूछ के एग्जामिनर ने हमें दो चीजें रिमाइंडर दिया कि स्टूडेंट शुड रिमेंबर कंडीशन फॉर वेव फंक्शन को, अगर गिवन वेव फंक्शन है तो उसे नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, और सिस्टम की एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला। क्वांटम मैकेनिक्स से ये रूल्स आप याद रखेंगे। मैंने समझता कोई क्वेश्चन सुबह भी इस प्रकार का क्वेश्चन था वीडियो में, और आफ्टरनून भी आज हमने एक क्वेश्चन फिर हमारे सामने आया। जो सिलेक्टेड गुड क्वेश्चन है वही मैं आपके आगे इस वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आपके आगे रख रहा हूँ। थैंक यू सो मच।